Hello, dear students. Hope all of you are fine. Good morning to all of you. This is your teacher Rakesh Kumar Mishra from Kendriya Vidyalaya number 3, Air Force Station, CHAKERI, Kanpur. Dear student, today we are going to discuss the topic indifference curve analysis. First, let me clear that why I am going to make this video. There is a specific purpose behind it because indifference curve analysis chapter is so much important. Seeing your exam, it is very scoring chapter also. I want to deal with this chapter very seriously. Usually I take class on Google Meet, but on Google Meet there are some internet speed related problems, some connectivity problem, and also the issues of video and audio discontinuation is also very important. Due to these problems, I have planned to discuss you this chapter with a specific video, and for to serve this purpose this video is made. Kindly see the video carefully, enjoy the chapter. That is our motto. So dear student, let us begin with the chapter now. Firstly, let me give you plan how to study this chapter, because if there is no planning, then things does not come with desired effect. Firstly, all of you, this is my personal suggestion to all of you: before you go to read any chapter, you must make a plan what to study and what not to study. So in this chapter, your plan should be like this, that you must divide whole chapter in three parts. The first part should cover meaning and properties of indifference curve, and then budget line, and then the determination of consumers equilibrium using indifference curve and budget line. So I purposefully I have given red color, yellow color and green color. As you know, in traffic light there are three colors: red, yellow and green. You usually don't jump on green. Firstly you start with red light. जब आप रुकते हैं, then you get yellow light, and then after you get green light. So don't try to jump directly on determination of consumers equilibrium. Firstly read what is meaning and what are the properties of indifference curve, because separate questions are being asked from this portion of this chapter. So then you go to study budget line. What is budget line, and how does it help in attaining the consumers equilibrium? And then finally you go we will discuss the determination of consumers equilibrium by using these two tools, indifference curve and budget line. So determination of consumers equilibrium by indifference curve is not possible until and unless you are not expert of using these two tools. First is indifference curve and another is budget line. Okay, so that is the plan of study, and accordingly we will work. So come with indifference curve analysis. Here the first part of this chapter, the first part, in the first episode we will discuss definitions and properties of budget line. I am going to start with definition of budget and definition of indifference curve. Okay, so let us see what is indifference curve. Indifference curve is the locus of all those combinations of two goods which give same level of satisfaction टू द कंज्यूमर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अलग कलर से लिखा हुआ है. तो अलग कलर से लिखने का एक कारण है, अलग कलर से लिखने का कारण यही है कि आप इन चीज़ों को डेफिनेशन लिखते समय बिल्कुल भी भूले ना. कभी कभी आप एग्जाम में जब पूछा जाता है डेफिनेशन लिखने को इंडिफरेंस करके 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप जो डेफिनेशन लिखते हैं इट इज़ यूजुअली इम्परफेक्ट. सो देयर शुड बी परफेक्शन. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन लेवल, इसका मतलब क्या हुआ? मैसेज क्लियर है कि एक इंडिफरेंस कर्व के सभी पॉइंट पर सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है. सो इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व ऑन इट consumer gets same level of satisfaction when the consumer move from upper
point of indifference curve to lower point of indifference curve, or lower point of indifference curve to upper point of indifference curve, all the point will give him or her same level of satisfaction. That is once more being analyzed here in the paragraph. That thus consumer is indifferent towards all the combinations of all the combinations lying on same indifference curve. So मतलब क्या हुआ इसका कि when a consumer is on indifference curve, he remains indifferent, he remains neutral. क्यों वो इंडिफरेंट रहता है? वो इंडिफरेंट इसलिए रहता है कि उसके किसी भी पॉइंट पर होगा तो उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. In other words, consumer gives equal preference to all such combination. जब आपको पता है कि ये 10 कम्बिनेशन है, 10 के 10 सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, तो पहली बात तो आप इंडिफरेंट होंगे उसमें किसी भी कम्बिनेशन पर रहे, चाहे फर्स्ट कम्बिनेशन, सेकंड कम्बिनेशन, थर्ड कम्बिनेशन या किसी भी कम्बिनेशन पर रहेंगे, आप इंडिफरेंट रहेंगे कि इट इज़ गोइंग टू गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. एंड hence you will give same preference to all the combination. So that is the meaning of indifference curve. That is the definition of indifference curve. यहाँ आपको इंडिफरेंस कर्व की डिफिनीशन याद करनी होगी, समझना भी होगा, याद करना होगा, हर हाल में याद करना होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते. नाउ लेट अस सी द सेकंड स्लाइड, अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अजम्पशंस पर हम आते हैं. देखिए आपकी क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें अजम्पशंस तो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के, लेकिन इकोनॉमिक्स में नॉर्मली अजम्पशंस को बहुत वैल्यू दी जाती है. तो यहाँ पर जो अजम्पशंस हैं वो मैंने सारे लिखे हुए हैं. सारे अजम्पशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम फर्स्ट 2 एजम्पशन पर जरूर फोकस करेंगे कि आप इसको जानें कि फर्स्टली अजम्पशन ये है, बिफोर वी गो टू डिराइव द इंडिफरेंस कर्व, बिफोर वी गो टू एनालाइज द इंडिफरेंस कर्व, बिफोर वी गो टू फाइंड द diagrammatic and schedule wise analysis of indifference curve, we must know what are the assumptions on the basis of which we are going to derive it. It means indifference curve. The first assumption is rational consumer. Consumer must be rational. आपको जब मैं यूटिलिटी अप्रोच मार्शल का पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी कंज्यूमर को रेशनल माना गया. तो दैट assumption is being carried here also, that a consumer is rational. And next assumption is ordinal utility. Lastly, we have discussed the utility approach of consumers, equilibrium, single good model and double good model, which was given by Professor Alfred Marshall, in which we were assuming that cardinal approach of utility is applicable. Whereas under indifference curve क्या यहाँ पर difference मिल रहा है आपको कि यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी को लिया गया है, ना कि कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी को लिया गया है. तो ये डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखें. कभी कभी you may get MCQ on the basis of this concept that indifference curve approach is based on 4 ऑप्शंस मिलेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, बोथ, नन ऑफ अबव, ऐसा करके मिल सकता है. तो इंडिफरेंस कर्व किस पर बेस्ड है? ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी पर बेस्ड है. और आगे की जो ये अजम्पशंस हैं, आप में से जो क्यूरियस स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं इसके बारे में पढ़ाई कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से. बाकी चारों अजम्पशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते यू शुड नो इट, क्योंकि आप सिर्फ 11th 12th पास करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं. तो आपको यू मस्ट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग. दैट नॉन सैटिटी मतलब मोर इज़ प्रिफर्ड टू लेस. जहाँ ज़्यादा कंज्यूमर को मिलेगा वहाँ वो जाएगा, लेस को वो प्रीफर नहीं करेगा, मोर को प्रीफर करेगा. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरह समझ सकते हैं, बट दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हियर वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So and another assumption is consistency, means if a consumer prefer A to B in one period, then he will not prefer B to A in another period. यानी ये अगर वो पहले A को प्रीफर कर रहा है और B को नहीं प्रीफर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम वो B को प्रीफर करे, B को प्रीफर करने लगे, A को छोड़ दे. तो ऐसा नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी उसके सिलेक्शन में, उसके चॉइस में. एंड देन देयर इज assumption of transitivity. If a consumer prefer A to B and B to C, then he
मस्ट प्रिफर ए टू सी। यहाँ आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वाई टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज देयर इज अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ये हम आपको आगे बताएंगे। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने जो है यहाँ पर सारे क्लियर कर लिए अपने अजम्पशंस को। तो आते हैं हम नेक्स्ट पर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर अब हम आते हैं। इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, उसका शेड्यूल कैसा होता है, फिर उसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे पाते हैं, और फिर कैसे हम कर्व को डिराइव करते हैं। तो फर्स्टली लेट अस सी द शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। शेड्यूल इज दैट हियर यू कैन सी दैट this table is showing different combination giving equal satisfaction. Suppose that I am taking here for example two goods x and y, और x को आप x और y में आप x को ऑरेंज मान सकते हैं, एप्पल को y मान सकते हैं, इस तरह से मान सकते हैं। लेकिन आप x y ज़्यादा एल्जेब्रिक होने के बजाय चलो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक एप्पल है दूसरा ऑरेंज है। आप जानते हैं एप्पल और ऑरेंज बहुत ही अच्छे फ्रूट होते हैं, सबको इनको खाते हैं। और अगर अब आप सोचिए कि अगर एक कंज्यूमर के पास 22 ऑरेंजेस है और 1 एप्पल है, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन ए, जहां पर कंज्यूमर के पास 22 ऑरेंज हैं और 1 एप्पल है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन उसको 14 ऑरेंजेस और 2 एप्पल से मिलेंगे। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर सैक्रिफाइसेस certain unit of oranges and he purchase an additional unit of apple, means when apple is increased by 1 unit by sacrificing 8 unit of orange, the consumer will get same level of satisfaction। यहाँ same level of satisfaction कैसे हो? क्योंकि जहाँ उसको 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, वहीं ऑरेंज का कंजप्शन अब कम हो जाएगा। ऑरेंज का कंजप्शन अब घट करके 14 हो जाएगा। तो ऑरेंज का कंजप्शन के कम होने से जितनी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी उतनी मार्जिनल यूटिलिटी उसको फुलफिल हो जाएगी A1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल के कंजप्शन से। मीन्स द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी विच इज रिड्यूस्ड बाई लेसर कंजप्शन ऑफ ऑरेंज विच इज रिड्यूस्ड बाई 8 यूनिट, दिस लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन विल बी फुलफिल्ड बाई एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल विच इज 1 यूनिट बीइंग कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर। तो जहाँ 1 यूनिट एप्पल को के बढ़ने से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, वहीं ये जो यूटिलिटी सरप्लस होगी वो लेस हो जाएगी ऑरेंज का कंजप्शन कम होने से। तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम रहा। बिल्कुल ऐसे आप जान लीजिए आपके जेब से, इस जेब से 5 रुपये निकाल करके उस जेब में 5 रुपये डाल दिए जाते हैं, तो आपका जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वो तो चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ आप लोगों का एक डाउट हो सकता है कि ऑरेंज का तो यूनिट ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है और एप्पल का यूनिट तो सिंगल ही बढ़ रहा है। मीन्स 8 यूनिट ऑफ एप्पल इज रिड्यूस्ड, 8 यूनिट ऑफ ऑरेंज इज रिड्यूस्ड वाइल कंज्यूमर इज गेटिंग ओनली 1 यूनिट ऑफ एडिशनल एप्पल। तो ये सेटिस्फेक्शन इक्वल कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाई जा चुकी है, तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा कि देखिए कंज्यूमर के पास 22 ऑरेंजेस हैं और 1 एप्पल है। तो अब आप ये बताइए कि उसको ज़्यादा यूटिलिटी ऑरेंज से मिल रही होगी कि एप्पल से मिल रही होगी? जाहिर सी बात, अगर आपके पास एक ही एप्पल है और 22 ऑरेंज है तो आपको ऑरेंज से कम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी और एप्पल से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी। समझ रहे हैं क्या है कि नहीं? जैसे क्या कहते हैं, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। जैसे तो जो है 8 यूनिट ऑफ ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी 1 यूनिट ऑफ एप्पल के। So hence the satisfaction level remains same. Now again you see the schedule. Next, consumer increases an additional unit of apple in his portfolio. And the amount of apple increases from 2 unit to 3 unit, and then the amount of orange is reduced by 6 unit. And at the combination level C, here you see combination level C.
consumer is consuming 3 apples and 10 oranges, it is again giving same level of satisfaction, because while 4 unit of orange is reduced, 1 unit of apple is increased. So amount of utility received from consumption of an additional unit of apple is equalized by loss of utility by sacrificing 4 unit of oranges. Then you see the combination label D, that is 4 unit of apple and 8 unit of orange, and then you see the combination level E, where consumer consumes 5 unit of apple and 7 unit of oranges. यहाँ पूरे शेड्यूल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, एप्पल का यूनिट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऑरेंज का यूनिट वैसे वैसे कम हो रहा है। तो इससे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल बना हुआ है। अगर आप सोचो कि दोनों की यूनिट बढ़े तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, वो तो बढ़ जाएगा, फिर सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज हो जाएगा। अगर दोनों की यूनिट रिड्यूस हो तो सेटिस्फैक्शन लेवल रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक का यूनिट इंक्रीज हो, दूसरे का यूनिट कम हो जाए, तो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम बना रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक टंकी में से 5 लीटर पानी निकल गया और 5 लीटर पानी डाल दिया, तो लेवल ऑफ वाटर तो वही बना रहेगा ना। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं दोबारा से कर रहा हूँ कि प्लीज़ नोटिस दैट यहाँ पर यूनिट ऑफ एप्पल और ऑरेंज को ना कंपेयर करिए, यहाँ पर आप मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड बाई रिड्यूसिंग एन एडिशनल बाई रिड्यूसिंग सम अमाउंट ऑफ ऑरेंज की तुलना करिए। आप यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी की आपको कंपेयर करें, ना कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंपेयर करें। सो हियर यू सी इन दिस साइड, दिस इज द एक्स एक्सिस, आई एम सॉरी, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो हम देख रहे हैं, आप यहाँ पर हमने y एक्सिस पर लिया है ऑरेंजेस को और x एक्सिस पर लिया है एप्पल्स को। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन ये है, पहला कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये है, ये A, जहाँ पर 1 यूनिट एप्पल और 22 यूनिट ऑरेंज कंज्यूम हो रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये है, जहाँ पर 2 यूनिट एप्पल और 14 यूनिट ये जो है ऑरेंज कंज्यूम हो रहा है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है C, जहाँ पर हम 3 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं। और चौथा ये है D, जहाँ पर हम 4 यूनिट एप्पल और 8 यूनिट ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं। और ये 5वां यूनिट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो 5 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है। तो आप जो है इस तरीके से देखेंगे कि ये पांचों हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए। पांचों कॉम्बिनेशन को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमें एक इस तरह का कर्व मिल जाएगा कि नहीं, हमें इस तरह का एक कर्व मिल जाएगा। और ये कर्व जो है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है और यही एग्जैक्टली आपका इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट करेक्ट वे टू डेराइव इंडिफरेंस कर्व। पहले आप शेड्यूल बनाएंगे ये, फिर आप इंडिफरेंस कर्व के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनको एक्स और वाई एक्सिस बना करके लोकेट करेंगे, फिर इन सारे कॉम्बिनेशंस को आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, आपको मिल गया इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये आपको इंडिफरेंस कर्व पाने का तरीका हो। चलिए हम जल्दी से अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट अस सी, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं शेड्यूल वही है, जो है इंडिफरेंस कर्व को हम सारे कॉम्बिनेशन पॉइंट को 1:22, 2:14, 3:10 एंड 4:8 एंड 5:7 इसको हमने कनेक्ट करके ये हमने इंडिफरेंस कर्व बना दिया। तो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। जान लीजिए, पहचान लीजिए, इनसे अपनी जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनका ये शेड्यूल और ये डायग्राम आप बार बार पढ़िए, बार बार तैयार करिए, बार बार अपने जहन में बैठाइए, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जरा बात कर लेते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समटाइम्स 3 marks or 1 marks क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई? रीड इट प्रॉपर्ली। क्या आप पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाई
द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स and maintain the same level of satisfaction. So dear student, to maintain the same level of satisfaction, the amount of y which is reduced to get an additional unit of x means the amount of y which consumer is just willing to give up to get one more unit of x is known as marginal rate of substitution, which is very important to maintain the same level of satisfaction. So what is the formula of marginal rate of substitution between x and y? Decrease in the consumption of y good divided by increase in the consumption of x good. So you can write it like this, that delta y upon delta x will depict the marginal rate of substitution between x and y. So remember this formula, हमारे से xy is equal to delta y by delta x, which is reducing in nature, which is reducing, therefore minus sign is placed before it. So this is the significance of minus sign, which proposes negative relation between y and x. y घटेगा और x बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव, इस नेगेटिव रिलेशन को, इस इनवर्स रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको दिखाने के लिए यहाँ माइनस का साइन लगाया गया है, बस और कुछ नहीं. सो लेट अस क्विकली मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? उसी टेबल को लीजिए जो आपने पहले इंडिफरेंस कर्व बनाते समय आपने लिया था, उसी टेबल को यहाँ पर बस आप देख लीजिए कि पहले क्या हुआ कि 8 यूनिट ऑफ y वाज रिड्यूस्ड टू गेट 1 यूनिट ऑफ x, तो 8:1. देन 4 यूनिट ऑफ y वाज सेक्रीफाइस्ड टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ x, दैट इज 4:1. देन अगेन एक्स वाई का मतलब वही आप समझ रहे हैं, ऑरेंज एंड एप्पल. देन अगेन 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज was reduced to get 1 unit of apple, and then 1 unit of orange was given up to get an additional unit of apple. So 8:1, 4:1, 2:1, 1:1 represents the marginal rate of substitution, which is the reducing. आप देखिए 8:1, एक के लिए पहले 1 एप्पल के लिए 8 ऑरेंज सेक्रीफाइस, देन 1 एप्पल के लिए 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस, देन 1 एप्पल के लिए 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस, देन 1 एप्पल के लिए 1 ऑरेंज सेक्रीफाइस. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जिस रेट से एप्पल को ऑरेंज से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, वो रेट तो घटता हुआ दिख रहा है. Are you able to see it? वो रेट तो घटता हुआ जा रहा है. The rate at which apple is being substituted by orange is reducing. That is exactly the marginal rate of substitution between x and y. So this is what I wanted to tell you. And now come on, law of diminishing marginal rate of substitution. तो law of diminishing marginal, आपको अगर पूछा जाए कि explain how हमारे x y decreases या वाई, या ये सिंपल क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बच्चों इसीलिए होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई डिमिनिशेस. इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया, तो ये देखिए ये वाई का एरिया है जो रिड्यूस किया गया, ये एक्स का एरिया है जो बढ़ा है. देन वाई का एरिया जो रिड्यूस किया गया, एक्स का एरिया जो बढ़ा. देन वाई का एरिया जो रिड्यूस किया गया, एक्स का एरिया जो बढ़ा. देन वाई का एरिया जो रिड्यूस किया गया, एक्स का एरिया जो बढ़ा. तो आप देख रहे हैं ना, ये वाई जो है, ये वाई का जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो घटता जा रहा है. ये जो लाइन है, ये लाइन जो है घटती, छोटी होती जा रही ना. तो इसको, इससे आप ज्योमेट्रिकली ये बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसको हम डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं. ओके, थैंक यू. हम बढ़ते हैं जल्दी से. अभी हमें करना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करना है. चलो जल्दी से करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. ये आप समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको सबको मतलब फिक्स डिपॉजिट की तरह अपने नॉलेज बैंक में रखना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की? इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप. फॉर एग्जांपल, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अरे भाई, अभी आपने देखा था ना इंडिफरेंस कर्व कैसा था, ऐसा था ना. तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव ही तो है ना इसका स्लोप. इसका स्लोप नेगेटिव है. तो और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये
गिरता हुआ होता है। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve is always convex to the origin. It implies that two goods are imperfect substitutes and MRS XY between two goods decreases as a consumer move along an indifference curve. Indifference curve will be straight. अब ये दूसरी बात होगी, पहली बात पर भाई इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द, और ये लाइन अपने दिमाग में बैठा है। व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज टू गुड्स कैन नॉट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बिकॉज टू गुड्स कैन नॉट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड MRS XY डिक्रीजेस। ओके, सो अच्छा, अगर MRS XY डिक्रीज हो रहा है तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो गया। अगर MRS XY कांस्टेंट हो तो, ये देखो कांस्टेंट के बारे में लिखा हुआ, अगर MRS XY कांस्टेंट हो तो क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर MRS XY इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग के बजाय तो द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉनकेव टू द ऑरिजिन। भैया अगर MRS XY इंक्रीजिंग हो जाए ना तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो जाए, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। और चूंकि MRS XY डिक्रीजिंग होता है इसलिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, सॉरी। और अगर जो है इंडिफरेंस MRS XY कांस्टेंट हो जाए तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। ओके, सो दैट इज व्हाट द second property of indifference curve. Now come to third property of indifference curve. That is very interesting, that two indifference curve never intersect or become tangent to each other. भाई indifference curve, दो indifference curve ना एक दूसरे को काट सकते हैं और ना एक दूसरे को टच कर सकते हैं। Neither they can intersect each other or nor they can tangent to each other. This is because of the प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी जो मैं आपको शुरू में बताया था। भैया देखिए यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 और IC2 आप देख रहे हैं, ठीक है। IC1 और IC2 पॉइंट ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो होगा ये इनवैलिड पॉइंट होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर जो रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी है वो वायलेट कर रहा है। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी को एक बार फिर से समझने के लिए, एक बार फिर से जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी पर बना दूंगा, लेकिन आपके 11th के सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये 30 मिनट का होने जा रहा है। सो जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट और टेंजेंट टू ईच अदर। ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे जब एग्जाम में ये प्रॉपर्टी लिखने को पूछी जाएगी, और यहां पर लिख देंगे कि पॉइंट ए इज इनवैलिड। Okay, now come to fourth property of indifference curve very quickly, that in higher indifference curve represent a higher level of satisfaction. ये कंसिस्टेंसी का रूल हमने वहाँ पर लिया था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि भाई देखिए अगर वो एक बार मतलब कि कंज्यूमर को हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन, जो हायर कम्बिनेशन होगा वो उसको वो प्रीफर करेगा। तो देखिए जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, उससे हायर इंडिफरेंस कर्व उससे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। सो देयर विल बी कंसिस्टेंसी कि IC1, IC2, IC3, IC4 ये देखिए 4 इंडिफरेंस कर्व है, तो इनमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को किस पे मिलेगा? सबसे ऊपर वाले पर मिलेगा, और सबसे कम सेटिस्फेक्शन किस पर मिलेगा? सबसे नीचे वाले पर मिलेगा। तो एक ऑर्डर बन गया ना भाई कि लोअर इंडिफरेंस कर्व विल शो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो चलो मैं यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, दो इंडिफरेंस कर्व बनाया, तीन इंडिफरेंस कर्व बनाया, तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन किस पर मिलेगा? IC3 पर मिलेगा, और सबसे कम इंडिफरेंस कर्व किस पर मिलेगा? IC1 पर मिलेगा, ये 1 जो हमने पहले बताया था, ठीक है। और ये बीच वाला इंडिफरेंस कर्व तो बीच वाला ही है, ठीक है, ये तो इस पर ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, बीच का है, ठीक है। तो ये जो है कंज्यूमर, ये प्रॉपर्टी ऑफ ये फोर्थ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जो कि बहुत आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व
नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर टचेस वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच एक्स एक्सिस और नॉर टच वाई एक्सिस। ये पॉइंट ए जिस पर इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं ये ड्यू टू प्रॉपर्टी है, ड्यू टू डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ टू गुड। भैया कितना गुड? टू गुड। तो अगर वो एक इंडिफरेंस कर्व ए को टच किया तो इसका मतलब क्या हुआ? y का तो कंजप्शन 10 यूनिट हो रहा है और x का कंजप्शन कितना यूनिट हो जा रहा है? 0 यूनिट हो जा रहा है। और इंडिफरेंस कर्व मिनिमम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो यहां जब एक गुड 0 हो गई तो 2 गुड तो रहा ही नहीं भाई। तो दैट इज वाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच एक्स एक्सिस ना टच वाई एक्सिस। क्योंकि वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स गुड 0 हो जाएगी, यानी एप्पल 0 हो जाएगा। और अगर वो यहां टच करेगा तो ऑरेंज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टू गुड का डेफिनेशन वैलिड नहीं रह जाएगा। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। एक बात आप जान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि भैया इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू ईच अदर हो, यानी पैरेलल टू ईच अदर होने का मतलब है दो इंडिफरेंस कर्व की दूरी बराबर रहे हमेशा। ये जरूरी नहीं है। ये जो दूरी है दो इंडिफरेंस कर्व के बीच की ना, ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, दो जरूरी नहीं कि बराबर हो। आप देखते हैं रेलवे लाइन जो होती है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन का। क्योंकि दोनों जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच की दूरी ना कम होती ना ज़्यादा। अगर ऐसा हुआ तो ट्रेन पलट जाएगी। तो ये जो है इंडिफरेंस कर्व कोई रेलवे लाइन की तरह नहीं है भैया कि दोनों के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहे। ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं। पैरेलल हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा पैरेलल हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर ऑलवेज। सो कमिंग ऑन, अब देखिए चूंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया। तो हमने हमने बताया ना, प्लान ऑफ स्टडी है कि इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो 3 वीडियो भी होंगे। पहला वीडियो हो गया व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हाउ द इंडिफरेंस कर्व इज डेराइव्ड, हाउ टू मेक इट्स शेड्यूल, एंड देन आई हैव डिस्कस्ड यू 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये 6 प्रॉपर्टी इसलिए डिस्कस किया उन्होंने बच्चों क्योंकि 6 मार्क्स के लिए इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है एग्जाम में। अगर 6 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी तो आपको 6 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। एक भी कम हुआ तो आपका गया 1 नंबर। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट। हम जो है पहले प्लान ऑफ स्टडी के पहले पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें था मीनिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट लाइन क्या होता है, व्हाट इज बजट लाइन, हाउ डज इट मेड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। तो दूसरे वीडियो में हम बजट लाइन डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, तीसरा जब ग्रीन लाइट आएगा तो तीसरे वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि हाउ टू डिटरमिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। सो हमारे तीनों वीडियो को आप लगातार देखिएगा तभी इस चैप्टर को आप पूरा कर पाइएगा। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इफ यू वांट टू बी इकोनॉमिस्ट, इफ यू वांट टू नो इकोनॉमिक्स, इफ यू वांट टू मेक कैरियर इन इकोनॉमिक्स, इफ यू हैव ऑप्टेड कॉमर्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट एज ए चांस और एज ए चॉइस, you are bound to deal with this chapter very seriously. So cooperate with me, continuously watch 3 videos. अगला वीडियो जल्दी बना करके आपको भेजेंगे जो बजट लाइन पर होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।